مصر کا ڈاکٹر القاعدہ کا دہشت گرد کیسے بن گیا، جو ڈاکٹروں اور علماء کے قابل احترام گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جو آنکھوں کا سرجن تھا، جس کا باپ ادویات سازی کا مصر کی قاہرہ کی یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، جس کو امریکہ 9/11 کے حملوں میں اسامہ کا ساتھی اور قصوروار ٹھہراتا ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 9/11 کا سارا منصوبہ اسی شخص نے بنایا تھا جو اسامہ کے مرنے کے بعد القاعدہ کا امیر بنا، اور اسامہ کی زہری حیات میں وہ اسامہ کا رائٹ ہینڈ تھا، جس کو امریکہ نے پچھلے 2 ماہ میں مروا دیا تھا ایک ڈرون حملے کے ذریعے افغانستان کے اندر۔ ایمن الظواہری۔ دوستو میں ہوں مظہر اقبال، اور آج کی اس ولاگ میں ہم اسی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا پورا نام ایمن محمد الظواہری ہے، جو مصر کے شہر گیزہ میں 19 جون 1951 کو پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد کا نام محمد ربیع الظواہری ہے، جو قاہرہ یونیورسٹی میں سرجن اور فارمیسی کے پروفیسر تھے۔ دوستو اس کے والدہ کا نام امائمہ تھا، جو ایک سیاسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ دوستو امریکی ادارے FBI نے یہ بیان دیا ہے کہ ایمن دہشت گردوں کی بڑی بڑی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے، جس میں سب سے پہلے صومالیہ 1993 میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت، افریقہ میں امریکی سفارت خانے پر حملے اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ شامل ہے۔ یعنی کہ دہشت گردی کے جتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ یورپ کے خلاف جو بھی طالبان نے کیے، الظواہری ان میں شامل ہے۔ دوستو الظواہری کا بچپن اچھا بچپن تھا، وہ کھاتے پیتے اور پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، بڑا ذہین و فطین تھا۔ وہ سکول میں ایک ذہین طالب علم کے طور پر جانے جاتے تھے، جو 5 منٹ میں سب کچھ یاد کر لیا کرتے تھے۔ ان کی سوچ ایسی تھی جیسے کوئی بڑی عمر کا لڑکا سوچتا ہے۔ دوستو ایمن جوانی میں اسلام کی طرف راغب تھے، جس کی وجہ سے وہ جہاد کی طرف مائل تھے، جس کا ذکر وہ خود اپنی کتاب میں کرتے ہیں کہ کس طرح سکول کے چند دوست اکٹھے ہوئے تھے شروع میں جب وہ سکول میں تھے، جو مصر میں ایک ان کا شخص تھا سید قطب۔ دوستو قطب ایک ایسا شخص تھا جو سیکولر سٹیٹ کی طرف مصر کو لے کر جا رہا تھا، اور وہ اسلام کے خلاف تھا، کیونکہ اس کو امریکہ، برطانیہ اور دیگر دوسرے یورپین کنٹریز کی بھی حمایت حاصل تھی، اور اس حمایت میں وہ بڑے بڑے کام سر انجام دے رہا تھا جو اسلام کے خلاف تھے، اور ایمن یہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کو کسی طرح ایمن اور اس کے ساتھیوں نے مل کر قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایمن کی زندگی میں مختلف نشیب و فراز آتے گئے، جیسے ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، اور 1937 میں انہوں نے نوجوانوں کی ایک تنظیم الغمامہ الاسلامیہ ایک گروپ بنایا، جس میں بعد کا اس کا نام اسلامک گروپ رکھ دیا گیا۔ یہ ایمن کی جوانی کے دن تھے اس وقت، اور اس کا یہ سفر اسلام اور جہاد کی طرف تھا۔ دوستو ایمن کی بنائی ہوئی یہ تنظیم، یہ اسلامک گروپ اتنا مشہور ہوا اس وقت مصر کے اندر، اتنا پاپولر ہوا کہ بعد میں طلباء نے فیشن کے طور پر داڑھی رکھنا شروع کر دیا، اور لڑکیوں نے نقاب اور حجاب پہننا شروع کر دیا۔ ایمن خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1974 میں ان کی تنظیم کے 40 ارکان تھے۔ اسی دور میں ایمن قاہرہ یونیورسٹی کے میڈیکل سکول میں سرجری کے اسپیشلائزیشن کر رہے تھے۔ ایمن اپنی گریجویشن بھی مکمل کر رہے تھے اور اسلام کی طرف بھی اپنا سفر بڑھا رہے تھے۔ دوستو اسی سال 1974 میں میڈیکل کی ڈگری مکمل کی، اور اس کے بعد مصر کی فوج میں 3 سال تک بطور سرجن کام کرتے رہے۔ اس کے بعد ایمن کو جہاد کے لیے ایک اور جگہ مل گئی جب سوویت یونین نے افغانستان پر چڑھائی کی۔ اس وقت ایمن بہت ہی غصے میں تھے، کیونکہ مسلمانوں کے اوپر سوویت یونین نے حملہ کر دیا تھا۔ یہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، کیونکہ وہ امت اور اسلام کا درد رکھتا تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمان کس طرح پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ دوستو وہ قاہرہ جس میں ہسپتال میں وہ ڈیوٹی کر رہے تھے، جس ہاسپٹل میں، اسی ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے ایک دن ایمن سے پوچھا کہ کیا وہ ان کے ساتھ پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی جس طرح سرحد ساتھ ہے، تو ایمن کے ذہن میں یہ منصوبہ تھا کہ وہ اس طرح پاکستان چلے جائیں گے، اور اس وقت افغانستان سے مجاہدین پاکستان اپنا علاج کروانے کے لیے پشاور آتے تھے افغانستان سے، جب وہ جنگ لڑ رہے تھے سوویت یونین کے خلاف۔
डायरेक्टर के ये सवाल पूछने के बाद ऐमन फौरन राजी हो गया। उस वक्त अफगानिस्तान से हजारों लोग पाकिस्तान बतौर पनाह गजीन मुंतकिल हो रहे थे। दोस्तों, ऐमन जिहाद के लिए एक महफूज जगह की तलाश में था और मिस्र में ये मुमकिन नहीं था क्योंकि यहाँ मिस्र में गोरीला जंग मुमकिन थी ही नहीं। दोस्तों, अमेरिकी एयरफोर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐमन मिस्र की जेल में 3 साल गुजारे। दोस्तों, ये अरसा था 1974 के बाद। ऐमन को और इसके कुछ साथियों को 3 साल की कैद हुई थी। वजह यह बनी थी कि वो कुतुब शाह के कत्ल के मंसूबे में मुलव्विस था। अल जवाहिरी यानी कि ऐमन खुद तो मुलव्विस नहीं था, लेकिन इसके ग्रुप ने ये काम किया था। दोस्तों, अल जवाहिरी सदर असदाद के कत्ल के मुकदमे से तो बरी हो गए, ताहम उन्हें गैर कानूनी असला रखने पर 3 बरस की मजीद कैद हो गई थी। जेल में अल जवाहिरी के साथ मौजूदा कैदियों के मुताबिक हुक्काम उन पर बहुत तशद्दुद करते थे, मतलब उनके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ। यही तजर्बा उनके अंदर पुरजोश पर तशद्दुद इंतहा पसंदी के जज्बात पैदा करने का एक मोजब बना। सन 1985 में रिहाई के बाद अल जवाहिरी सऊदी अरब चले गए। उसके फौरन बाद ही वो पाकिस्तान की शहर पेशावर आए और यहाँ से वो हमसाया मुल्क अफगानिस्तान चले गए। यहाँ उन्होंने मिस्र के इस्लामिक जिहाद की एक शाख बनाई जो ऑलरेडी मिस्र में थी और मुल्क पर सोवियत यूनियन के कब्जे के दौरान एक डॉक्टर की हैसियत से काम किया। वो इस ग्रुप में काम करते रहे और दीगर तालिबान को मुजाहिदीन को भी मिलाते रहे। दोस्तों, सन 1993 में ये ग्रुप एक बहुत बड़े हजूम के साथ यकजा हो गया और उस वक्त वो उसका सरबराह बन गया। मिस्र के वजीर आजम आतिफ सदीकी समेत कई मिस्री वजीरों पर होने वाले हमलों में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। उसकी पीछे वजह यह थी कि उस वक्त वजीर आजम और उसकी दूसरी सेना यानी कि उसके वजीर मुशीर जनरल और उसकी आर्मी मिस्र को सेकुलर स्टेट की तरफ लेकर जाना चाहते थे और ऐमन इसका सख्त खिलाफ था। दोस्तों, इस ग्रुप ने 90 की दिहाई के दरमियान में सेंटर में हुकूमत का तख्ता उलटने और जहाँ इस्लामिक रियासत के क़याम के लिए एक मुहिम चलाई जिसमें 1200 से जायद मिस्री बाशिंदे हलाक हुए। सन 1999 में मिस्र की एक फौजी अदालत ने इस ग्रुप की जानिब से किए गए मुख्तलिफ हमलों में अहम किरदार अदा करने पर उन्हें गैबाना तौर पर सजाए मौत सुनाई, यानी कि ऐमन को। हालांकि ऐमन उस वक्त अफगानिस्तान में मुकीम था। उसी दौरान अल जवाहिरी ने महफूज ठिकानों और माली ज़राए की तलाश में दुनिया भर का सफ़र किया। अफगानिस्तान से सोवियत इनखला के बाद, सोवियत यूनियन के जाने के बाद बहुत से बरसों में वो बल्गारिया, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड में भी रहे हैं और कभी कभी उन्होंने जैली पासपोर्ट पर भी बल्कान ममालिक, ऑस्ट्रिया, यमन, इराक, ईरान और फिलिपाइन का भी सफ़र किया। दिसंबर 1996 में मुबैना तौर पर उन्हें बगैर कार आमद वीज़ा के चीचनिया के सफ़र करने पर रूस में गिरफ्तार कर लिया गया था। बगैर पासपोर्ट पे वो सफ़र कर रहा था क्योंकि उसका ताल्लुक अब तालिबान की तंजीम से जुड़ चुका था। दोस्तों, अल जवाहिरी की एक तहरीर में ये दावा किया कि वो खुद कहते हैं कि रूसी हुकाम उनके कंप्यूटर में मौजूद अरबी दस्तावेज़ात का तर्जमा नहीं कर सके और यूं वो अपनी शनाख्त खुफिया रखने में कामयाब हो गए। इसके बाद अल जवाहिरी अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद चले गए। उसामा ने उन्हें वापस बुला लिया था और उसामा उस वक्त जलालाबाद में मुकीम थे। 6 माह के बाद कीनिया और तंजानिया में अमेरिकी सफारत खानों पर बैक वक्त हमलों में 223 अफराद हलाक हुए और ये जितने भी लोग थे ये अमेरिका के लोग थे। बाद में जब कार्रवाई शुरू हुई और उस हमले का पता करवाया गया तो टेलीफोनिक गुफ्तगू से ये सबूत मिला इस हमले के पीछे अलकायदा और उसामा थे, यानी कि उसामा बिन लादेन। 2 हफ्तों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस गिरोह के तरबीती मराकज़ पर हमले किए। अगले रोज ऐमन ने एक पाकिस्तानी सहाफ़ी को फ़ोन किया और कहा कि अमेरिका को बता दें कि उसकी बमबारी, उसकी धमकियों और उसकी जारहियत से हम खौफ ज़्यादा नहीं हैं, अभी तो ये जंग शुरू हुई है। उसामा बिन लादेन और ऐमन अल जवाहिरी हर महाज पर अमेरिका के खिलाफ थे। दोस्तों, अल जवाहिरी 11 सितंबर के हमलों के मंसूबे बंदी में भी शामिल थे और यह सारा मंसूबा अल जवाहिरी का किया हुआ था और उसामा के वो जानशीन थे। दोस्तों, ऐमन के कत्ल से पहले सदर जो बाइडेन ने यह बयान दिया था कि ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि कुछ फ़र्क नहीं कितना भी वक्त लगे, आप जहां भी छुपे हों, अगर आप हमारे लोगों के लिए खतरा हैं तो आप जहां भी होंगे अमेरिका आपका पता चलाएगा और आपको वहां से निकालेगा। और दूसरा ये भी कहा कि अल जवाहिरी किसी जगह पर मौजूद है
उस बारे में पता लगा लिया गया और मैंने उस ऑपरेशन की इजाज़त दे दी गई है। यह बयान जो बाइडन ने उस वक्त दिया था जब अल ज़वाहिरी अफगानिस्तान में मुकीम थे। ऐमन अपनी अहलिया और बेटी के साथ काबुल के मरकज में बुलंद हिफाजती दीवारों वाले एक बड़े कंपाउंड में रह रहे थे। अल ज़वाहिरी ने जिस इलाके का इंतखाब किया वो निस्बतन एक अच्छा इलाका है। पिछली इंतजामिया में जो पूरा इलाका गैर मुल्की सफारत खानों और सफारतकारों का घर था, यानी कि अमेरिका जब तक यहाँ रहा तो इसी टाउन में रहता था, यानी कि उनके जितने भी अफीसर आर्मी के थे। अब तालिबान के ज्यादातर आला ओहदेदार इसी आलीशान इलाके में रहते हैं। अप्रैल के शुरू में CIA अफसरान ने पहले जो बाइडन के मुशीरों और फिर सदर को खसूसी ब्रीफिंग में बताया कि उन्होंने इंटेलिजेंस के जरिए एक ऐसे नेटवर्क की निशानदाही की है जो अलकायदा के रहनुमा और उसके खानदान की मदद करता है, और वो था ऐमन अल ज़वाहिरी। अमेरिकी जासूसों ने ऐसा घर के मकीनों के रवैये और उनकी नकलो हरकत की इंफॉर्मेशन और तफसीलात जमा की, जिसमें एक खातून पर भी नजर रखी गई जिन्हें अल ज़वाहिरी की बीवी के तौर पर शनाख्त किया गया। ऐमन अल ज़वाहिरी की बीवी ने वो तरीके इख्तियार कर रखे थे जिनसे काबुल में इस महफूज रिहाइशगाह तक कोई भी उनके शोहर तक ना पहुंच सके। अमेरिका के जासूसों ने यह भी बयान दिया उस घर में आने के बाद अल ज़वाहिरी खुद कभी भी अहाते से बाहर नहीं निकले, लेकिन उन्होंने नोट किया कि वो वक्तन फवक्तन बालकोनी में मुख्तसर वक्त के लिए जाहिर होते थे और इमारत की बुलंद दीवारों का जायजा लेते थे। 1 जुलाई को सदर जो बाइडन ने कई आला अहदेदारों को जमा किया, जिनमें CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर एवरल हैंस शामिल थे। उनके साथ बातचीत की गई, गुफ्तगू किया गया और ऐमन के ऊपर हमले की तरगीब भी दी गई। इस मीटिंग के बाद अगली सुबह ठीक सुबह 6:18 पर एक ड्रोन हमले दाग दिए गए। 2 हेल फायर मिसाइल अल ज़वाहिरी के मकान की बालकोनी से टकराए, जिसके नतीजे में अलकायदा के सरबरा अल ज़वाहिरी शहीद हो गए। इस हमले में उनके खानदान के दूसरे अरकान को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा। हमले के बाद मकान की खिड़कियां उड़ गईं, मगर हैरत अंगेज तौर पर कोई और नुकसान नजर नहीं आया। इस हमले को मारूफ हेल फायर मिसाइल इस्तेमाल किया गया, जिसमें धमाका खेज मफाद नहीं होता। मिसाइल की ये किस्म AGM-11-4R9X कहलाती है और बारूद की जगह इसमें 6 ब्लेड लगे होते हैं जो निशाने पर पहुंचने वक्त मिसाइल की दोनों तरफ से बाहर निकल आते हैं। इस मिसाइल के लगने के बाद असल तबाही काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है जो ब्लेडों पर मुश्तमिल हथियार के चलने के नतीजे में पैदा होती है। ये ब्लेड अपने टारगेट को तो काट कर रख देते हैं मगर किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाते। इस वक़्ए के बाद जब BBC के नुमाइंदे अल ज़वाहिरी के मकाम पर पहुंचे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो एक तालिबान ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इस तरह ऐमन अल ज़वाहिरी मौत के घाट उतर गया अमेरिका की सख्त कार्रवाई के बाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।